Okay, students, CBSE. So, this is the third part of this chapter, Nelson Mandela. In the previous part, we had learned about his life, how the apartheid system was happening or was forced to be on the people of South Africa. Okay, forcefully it will oppressing, जो बोलते हैं ना उसको, oppressed किया जाता था उनको. So here in the previous parts, Nelson Mandela हमें यहाँ पर वो समझाते हैं किसके किसके बारे में. The inauguration ceremony, the speech which he had given in the inauguration ceremony, which took place in the amphitheater in Pretoria, है ना? Yes. Then where he discussed about all the people who sacrificed their life in this moment of the apartheid system, where they had to abolish this, है ना? Or they had to make their country as a new nation. So most of the people, some soldiers, then some people, यहाँ पर उनके नाम भी दिए हुए हैं, उन्होंने कैसे contribute किया था to stop or to abolish वो system के लिए. तो ये होने के बाद वो इन सभी को thanks भी करते हैं. Also here Nelson Mandela express his thought about bravery or a brave. What does the brave mean? यहाँ पर brave किसे कहा गया है? किसे कहा गया है brave? Courage. Courage के ऊपर उन्होंने अपने thoughts express किए हैं. Courage उन्होंने किसको कहा? Courage means not कि जो victory हासिल कर ले. Courage उसे कहा जाएगा कि जिसको मतलब डर नहीं है, वो ऐसा नहीं है जो विक्ट्री हासिल करेगा, है ना, डर के आगे जीत करेगा, उसे करेजियस कहा गया है. तो ऐसे को इसको उन्होंने करेजियस कहा, सारे कॉमरेड्स को उन्होंने करेजियस कहा है ना. उनसे हमें उसका मीनिंग सीखना चाहिए, ये उन्होंने कहा. और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें वैसे बताई है. अभी आगे के पार्ट में नेल्सन मंडेला हमें उनके लाइफ के बारे में कुछ मोमेंट्स बताने वाले हैं, वो हम देखेंगे. इन लाइफ every man has a twin obligation. Obligation means some duty or the things which we have to do in our life. Obligations. Obligation, first obligation is to his family, and second family to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in the civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. So here Nelson Mandela is speaking about the twin obligation. We must follow these, or we must duty. ये हमारी क्या है? This is our kind of duty which we have to serve. कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टूवर्ड्स आवर फैमिली, कि जिसमें हमारे पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन सबके लिए आते हैं हमारे लोग. दूसरा ऑब्लिगेशन किसके लिए है? कंट्री के लिए. पहला ऑब्लिगेशन किसके लिए? द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टूवर्ड्स आवर फैमिली एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज फॉर आवर कंट्री, कि वेयर इट इंक्लूड्स कंट्रीज, पीपल, कम्युनिटी, एंड इन सभी के साथ हमें कैसे रहना है? Each man is able to fulfill those obligations according to their inclination and abilities. कि हमें क्या करना है? हमारे एबिलिटी के हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंगली हमें ये ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं. बेसिकली हमें हमारे फैमिली को भी सर्व करना है और हमारे नेशन के लिए भी हमें काम करना है. बस फैमिली नहीं देखनी है, तो हमारे नेशन के लिए भी हमारा काम बनता है. वो बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये उनके ट्विन ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताए हैं. इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि कौन से दो ऑब्लिगेशन उन्होंने बताए. द फर्स्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली एंड सेकेंड कंट्री. Then, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations.
As Nelson Mandela here expressed, twin obligation, two obligation, which every individual, every man has to serve for their nation or for their family. But the nation, the country like South Africa, it was not possible to fulfill it. How? Why? Because of apartheid system, the racism, the discrimination, है ना, इन चीज़ों की वजह से इसको फुलफिल करना शायद पॉसिबल नहीं था कि कंट्री को कैसे सर्व करे, कैसे मदद करे, कैसे क्या करे, उनको ऑथोरिटी ही नहीं है। तो वो बता रहे कि ये मुश्किल था वहां पर। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। जो कोशिश भी करने जाता, जो एक अच्छा इंसान बनकर कुछ करने भी जाता है ना, तो उसको क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था। एंड आइसोलेटेड, आइसोलेट करना है ना, बीइंग सेपरेटेड, अलग कर देना उसको इस तरह से। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो वही है, if someone tries to fulfill these obligation, if some person who is from black person or black people, हाँ, इनके जैसा कोई ब्लैक बंदा भी अगर कोशिश करने जाए टू फुलफिल दीज ट्विन एब्लिगेशन, देन तो वो उसके लिए फैमिली को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई काम करने जाते हैं तो वो क्या कर देते? पनिश कर देते, उठाकर जेल में डाल देते हैं, प्रिजन में डाल देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसके लिए उस बंदे को क्या करना पड़ता? पूरी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती, उसको फैमिली छोड़ ही देनी पड़ेगी। और पूरा फिर आप जेल में डालो, क्या करो, कुछ भी करो, फिर वो पूरा फैमिली छोड़ के उसको चलना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका में ऐसे ट्विन ऑब्लिगेशन फुलफिल करने जाए तो वो बात यहाँ समझा रहे है ना, कि उसको अपनी ड्यूटी के लिए फिर उसको पूरी तरीके से फैमिली छोड़ के उसको ही हैज टू लिव लाइफ अपार्ट, फोर्सफुली, अलग ही तरीके से उनको अलग लाइफ जीनी पड़ेगी, फोर्सफुली जीनी पड़ेगी। एंड I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as father and as a husband. देखो, तो शुरू में उन्होंने कहा कि ये भी इस मूवमेंट में थे। कौन? नेल्सन मंडेला। कि ये जब कोशिश करने लग गए कि ये दो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की, जब ये अपने ओर से 100% कोशिश कर रहे थे, when he was trying to fulfill these two obligation, twin obligation, but in the beginning he chose to place my people above my family. In the beginning choose to place my people, I didn't in the beginning choose my people above family. शुरू में इन्होंने किसको प्रेफरेंस दिया? फैमिली को। But later he realized and then he was serving for his nation. Okay, but in attempting that, कि वो करते वक्त, कि जब वो पीपल को अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने पीपल के लिए काम कर रहे थे, देन उसने तब ऑब्जर्व किया, वहाँ पर उनको समझ में आया कि ये पूरे ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर नेशन को चूज़ किया है तो उनको बस उसी के लिए करना पड़ेगा, उनको आइसोलेट हो जाना पड़ेगा, है ना, अलग हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सन, है ना, एज अ फैमिली की तरह वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कि यहाँ पर वो दो ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, नेल्सन मंडेला हियर is expressing us the twin obligation which every individual must be followed. But in South Africa it is impossible to follow these twin obligations. First is for our family, towards our family we serve our family, and then second one we should serve our nation. But for Nelson Mandela it was difficult to serve, to fulfill these twin obligation. Why? Because when he was serving for his family it was quite good, but when he started to serve for his nation, then उसका उनके लिए वो क्या हो गया? दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों? कि उनको अपने फैमिली के ऊपर कोई भी ध्यान देने को
नहीं हुआ, है ना। देन वो सेपरेट हो गए एंड वहाँ पर उनको दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने नहीं आए। तो ये ऑब्लिगेशन के बारे में वो बता रहे। समझे क्या बताया ऑब्लिगेशन के बारे में? 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, दोनों सभी को फॉलो करना चाहिए। नेल्सन मंडेला के बारे में क्या हुआ उस ऑब्लिगेशन को लेते हुए, वो बात आपको समझ में आई? वो फुलफिल कर पाए दोनों ऑब्लिगेशन? नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं कर पाए। ओके, उनका कहना है कि फैमिली को देखा तो नेशन नहीं देख सकते, या नेशन को देखने गए तो फैमिली नहीं देख सकते साउथ अफ्रीका में रहते हुए, क्योंकि वहाँ का सिस्टम वैसा है। देन I was not born with hunger to be free. I was born free in every way that I could know. हाँ, अभी इन्होंने शुरुआत में ही ऐसे कहा, देखो इस पैराग्राफ में, कि I was born free। अभी जब जन्म हुआ तो क्या हमें ऐसे जन्म से ही पता चल जाता है कि ये ऐसा है, वो वैसा, ये राइट है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, एंड दीज आर योर राइट्स, यू शुड फॉलो दीज थिंग्स, ऐसा वैसा वैसा होता है क्या? धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं, है ना। सो जन्मते से ये कैसे थे? फ्री थे। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। इनको लगता था कि सब कुछ हमारे लिए ही है, फ्री इन एवरी वे। बट धीरे धीरे जब ये बड़े होते गए, देन ही रियलाइज, अरे ये तो ऐसा है, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं, ये तो बस गोरे लोगों के लिए। बाद में उनको इस चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। शुरू में तो उनको कुछ लगता था क्या? नहीं, कि व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज फ्री, ही फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो। कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, कि जहाँ घूमना है घूमो, खेतों में जाना है जाओ, कोई रोकता था क्या? नहीं। देन फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, वहाँ झरने बहते थे, क्लियर स्ट्रीम रहते थे, पानी रहता था, तालाब रहता, जहाँ जाना है जाओ, उनको कोई रोकता था क्या? नहीं। रन थ्रू माई विलेज, गाँव में घूमना है घूम लो। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स and ride the board back of slow moving bulls। मतलब खाने के लिए, बुलक कार्ट पर घूमने के लिए, खेतों में घूमने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। And as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। कि when he was young, he never realized such things or such system which oppressed by the white supremacy, and he thought कि यही तो freedom है, he can run everywhere, go into the field and eat under the tree, beneath the tree, कार्ट पर, बुलक कार्ट पर घूम के आना, वहाँ पर स्ट्रीम में जाकर खेलना कूदना नहाना, ये उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही लगता था जब तक वो छोटे थे। हाँ, जब तक वो उनके फादर की सुनते थे, उनके ट्राइब में रहते थे, उनकी सारे रिचुअल्स वे फॉलो करते थे, सब कुछ ऐसा चल रहा था। बट उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह के ट्रबल नहीं थे कि जो लॉज मैन ने बना कर रखे हैं, जो वाइट सुप्रीमेसी ने जो लॉज बना कर रखे थे, उनको तब तक शायद वो रियलाइज्ड नहीं हुआ था। बट व्हेन it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। कि जब छोटे थे, that time he didn't realize, but when he started growing and in his boyhood he began to learn, then he thought कि हाँ सब freedom है, सब freedom है। It was his illusion। illusion मतलब जस्ट उनको ऐसे रियल लगना, कि भ्रम होना, है ना। बट यस, कि वेयर वी रियलाइज, वेयर वी फील कि दिस इज रियल, बट एक्चुअली दिस दैट वाज नॉट रियल, है ना। इस तरीके से कि व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम आई हैड ऑलरेडी बीन टेकन, इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब वो बड़े होते गए, उनको लगा कि ये मेरा फ्रीडम था। नहीं भाई, ये फ्रीडम नहीं था। उनको बाद में समझा कि मेरा फ्रीडम तो मेरे से कब से ही छीन लिया गया है। उनका फ्रीडम उनको है क्या?
वो फ्रीडम तो कभी का उनके पास से छीन लिया गया था, ये उनको कब पता चला? When he became young. पूछा जाता है इसके ऊपर भी सवाल कि फ्रीडम के, उनके लाइफ में फ्रीडम का मतलब क्या है, या उनके लाइफ में फ्रीडम कब मिला, उनको कब समझ में आया वगैरह, ऐसा सवाल पूछते, तो आपका ये आंसर वहां लिखना है। एंड दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। देन ही स्टार्टेड एंड ही बिकेम हंग्री फॉर टू गेट, he become hungry to get freedom at first as a student. Then वो स्टूडेंट वाले एज में थे that time, he wanted freedom only for himself. उनके लिए ही चाहिए था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये हक मिलना चाहिए, वो हक मिलना चाहिए, मैं ऐसे कर सकूं, मैं वैसे कर सकूं, ये उनको खुद को ऐसे लगता था when he was a student. But the transitory freedoms of being able to stay out at night, transitory freedoms, here the meaning of the freedom is changing for him as the period was going on, है ना? As the time passes, कि the freedom meaning or the meaning for the meaning of freedom जो है ना, ये इनके लिए बदलता रहा, या परमानेंट रहा क्या? नहीं, टेम्पररी, ट्रांजिटरी टेम्पररी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि ये उनके लिए बस टेम्पररी फ्रीडम था कि घर के बाहर रात में चले जाना। एंड रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लेना। गो वेयर आई चूज, जहां मन किया वहां उस जगह पर चले जाना। लेटर एज अ यंग मैन, स्टूडेंट एज में, हाँ, ये जो किया वो पढ़ लेना, जहां मन चला वो चले जाना, नाइट आउट चले जाना, ये उसके स्टूडेंट फेज में उनको ये फ्रीडम लगता था। बट जब वो आगे जाकर और बड़े हुए, as a young man in Johannesburg, I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. जब बड़े हुए तब उनको वो बात समझ में आ रही थी कि उनको जो बेसिक फ्रीडम होता है, जो ऑनरेबल फ्रीडम, जो सबको मिलना चाहिए, सबके लिए वो है, वो उनको शायद नहीं मिल रहा था। And of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Obstructed मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आना, दिक्कत आना, ऐसा कोई नहीं था तब तक, मतलब वो सब ठीक था। But then I slowly saw that not only was I not free, ये सब कुछ चल रहा था उनके लाइफ में, पढ़ना लिखना, फैमिली, घर संभालना, घर के खेलना कूदना, हाँ, एज अ स्टूडेंट फेज में बाहर जाना, पढ़ना, एवरीथिंग वाज ओके। तब उनको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब वो बड़े हुए, शादी हो गई, ठीक है, तब भी वो ठीक था। लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि अरे अभी तक जो मैंने लाइफ जी है ना, ये कोई भी फ्रीडम में नहीं था, ये कुछ भी फ्रीडम नहीं था। When I saw that, कि तब उनको रियलाइज हो रहा है, my brothers and sisters were not free, even I was not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो उन्होंने देखा कि he was not only alone or a single person whose freedom was reduced, but the whole, the people, हाँ, everyone who is black was black, कि जो काले लोग हैं सभी को ऐसे सफर करना पड़ा, कि सबका फ्रीडम कम किया गया था, सभी का फ्रीडम छीन लिया गया था। वो छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं उनको वो राइट नहीं मिलते थे। एंड दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर उनके बाद जब उनको ये बात का रियलाइज हुआ ना, जब वो बड़े हुए, यंग रहे, तब उनको ये बात समझ में आई, तब उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी चालू की, अफ्रीकन कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चालू किया, और वहां उन्होंने वहां उस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और तब से इस मोमेंट की शुरुआत उनके लाइफ में चालू हुई। मतलब वो फ्रीडम अपने बस फैमिली के लिए अभी तक देख रहे थे, या खुद के लिए जो सोच रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि सबके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, नॉट ओनली फॉर मी बट पीपल लाइक मी, उनके जैसे और जो लोग हैं उनको भी फ्रीडम चाहिए। तब से उन्होंने ये बात ठान ली।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था जो अभी हमने देखा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीडम के ऊपर। आया है ध्यान में? अभी यहां वो क्या बता रहे देखो, इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव their lives with the dignity, self-respect and that animated my life. उनका क्या विश है? डिजायर, उनकी विश, उनको क्या चाहिए? देयर नेल्सन मंडेलास डिजायर वॉज कि उनके जो फैमिली है, उनके जैसे जो लोग हैं, उनकी जो कंट्री है, वहाँ के लोगों को क्या मिलने चाहिए? डिग्निटी मिलनी चाहिए। डिग्निटी इज रिस्पेक्ट, ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, उनको ऑनर मिलना चाहिए, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अभी तक जिन्होंने कोई एक्शन ली नहीं थी, ही वॉज थिंकिंग कि हाँ यही तो लाइफ है, बट वेन ही रियलाइज, देन दैट रियलाइजेशन टर्न हिम इनटू अ बोल्ड यंग मैन टू फाइट फॉर दैट अपार्थेड सिस्टम। समझ में आ रहा है? उनको वो उसी ने चेंज किया। एंड दैट ड्रोव अ लॉ अबॉइडिंग अटर्नी और बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। इसी की वजह से तो वो बदले, एक सादा सूदा मामूली इंसान फैमिली लविंग हस्बैंड बदलकर एक बोल्ड इंसान बना, है ना, एक विदाउट होम रहने वाला इंसान बना। That force a life-loving man to live like a monk. घर बार संभालने वाला, सीधा सीधा फैमिली को देखने वाला इंसान को साधु जैसी जिंदगी जीनी पड़े, घर बार छोड़कर बाहर देखना पड़ा, मॉन्क की तरह, है ना। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. वो बोल रहे मैंने कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया है। यहाँ बोल रहे कि आप शायद आप मेरे सामने बैठे वाले इंसान ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया हो सकता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे बचपन में या फिर जब तक मुझे बिल्कुल भी पुअर छोटा सा भी फ्रीडम, लिटिल फ्रीडम भी उनको नहीं मिला है, कि जो उनको मिलना चाहिए था वो भी उनको मिला नहीं है। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग फ्रीडम में नहीं है। एंड फ्रीडम इज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल विच वी कांट डिवाइड। ओके, तो फ्रीडम, तुझे फ्रीडम ले ले और तेरे को नहीं मिलेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। इट्स इनडिविजिबल। इट शुड बी, वहां पर क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, है ना। एंड द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर ये चैन मेरे लोगों में लगी हुई है तो सब में भी लगनी चाहिए। समझे? चैन मतलब कि जो सिस्टम जो उनके ऊपर लगाई गई है, जो रूल्स उनके ऊपर लगाए गए, वो सब पे लगने चाहिए फिर। एंड आई न्यू दैट the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. दो टर्म्स है यहाँ पर, one is oppressor, another is who is being oppressed, है ना। मतलब जो उसमें सफर हो रहा है वो कौन? ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, और जो उनको सफर करवा रहा है वो ऑप्रेसर है। व्हाइट पीपल ऑप्रेसर एंड ब्लैक पीपल हु सफर्ड ऑप्रेस्ड बाय व्हाइट। ओके, सो वहां पर वो बोल रहे हैं आई न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ऑप्रेस्ड एज द ऑप्रेस्ड। तो यहाँ पर सभी को लिबर्टी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred. दूसरे का फ्रीडम छीनने वाला कौन होता है? prisoner of hatred रहेगा। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. हाँ, prejudice, a strong dislike without any good reason. दूसरे का फ्रीडम छीन रहे हो मतलब आप
आप एक तरह से प्रिजनर हो कि आप वो अच्छी बात नहीं कर रहे हो, है ना। एंड आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मतलब यहाँ से उनकी ये बात समझ में आ रही है कि वो फ्रीडम खाली ब्लैक लोगों को नहीं देना चाहते, वो वाइट और ब्लैक सबको इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं। इनके इस सेंटेंस से ये बात हमें समझ में आ रही है। गेटिंग? वाइट वालों ने क्या किया, खाली वाइट लोगों को फ्रीडम, ब्लैक वालों को नहीं दिया या उनको रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बट नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो दूसरे का फ्रीडम छीनता है वो इंसान भी बुरा होता है। तो मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूं, मैं सबको फ्रीडम देना चाहता हूं, वो ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड हो, सबको फ्रीडम देना चाहता हूं। एंड जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जब तक मेरा फ्रीडम मेरे से लिया है, मैं फ्री हूं क्या? नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है? द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर मीन्स बोथ ब्लैक एंड व्हाइट alike are robbed for their humanity. If you are giving freedom to only one, like suppose for black people and not for white, then दोनों की भी ह्यूमैनिटी फिर क्या कही गई है? छीन ली गई है। कह रहे हैं कि देना है तो सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। ये बात यहाँ से समझा रहे हैं। ओके, आया ध्यान में? हाँ, तो लास्ट में इन्होंने ये बात कही है कि फ्रीडम के बारे में, पूरा ये पूरा उसी के बारे में था जो अभी हमने पार्ट देखा। ये पूरा किसके बारे में था? फ्रीडम। किसको किसको फ्रीडम का मतलब उन्होंने अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हुए बताया कि बचपन में उनको इसका मतलब पता नहीं था, स्टूडेंट फेज में भी वो नहीं समझ पा रहे थे, बट जब वो यंग हुए तब उनको ये रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने इसकी मूवमेंट ज्वाइन की, फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और फिर आगे वो कैसे बढ़े, उनके लिए उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, ये बात उन्होंने पूरी यहाँ समझाई है। आई होप यू अंडरस्टूड। आया सबको समझ में? ओके, क्वेश्चंस दिए कुछ, वो देख लेते हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस? यस, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? हाँ, एज अ बॉय उनके लिए क्या था? खेतों में घूमना, रनिंग इन द फील्ड, हाँ, सिटिंग बिहाइंड द ट्री, और एज अ बॉय रे नाइट आउट तो स्टडी स्टूडेंट फेज में था, है ना। एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या था? नाइट आउट, जो बुक पसंद है तो वो रीड कर लेना। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम? कि इन्होंने उनको बोला कि ये टेम्पररी था, बाद में उनको उसका रियलाइजेशन हुआ कि विद द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम उनको नहीं मिला। वो बात उसमें उसके बारे में बता रहे, वो समझाना है आपको। आ रहा है ध्यान में? डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? नो। क्यों? हु टेक अवे अनदर पर्सन्स फ्रीडम, ही इज लाइक अ प्रिजनर, है ना, और हेट्रेड पर्सन, तो इसलिए वो भी फ्री नहीं है, उन्होंने भी उनकी ह्यूमैनिटी रॉब की है। वो बात यहाँ से समझा रहे, तो तुमने भी उनकी ह्यूमैनिटी रॉब की, वो बता रहे। ठीक है, आया ध्यान में? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट आप कर लोगे? ठीक है, फिर हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।